Welcome to BioRatna. Dear students, today is Sunday and in today's Sunday special session of concept building, I am going to discuss, do animals have haploid body? Do animals have haploid body? In this, first we will see the general pattern, how the animal cells behave and how the plant cells behave. Thus, we will relate it with the life cycle of bryophytes and pteridophytes, and I will try to simplify the things. The students are much afraid of the haplodiplontic life cycle of bryophytes and pteridophytes. Let us first start with the human beings. Human beings, you know बच्चे, in case of human beings, our whole body, सारे cells जितने हैं, सारे diploid है, सारे. Except for our gametes, all the cells will be diploid. That means, since birth till puberty, each and every cell will be diploid. So, if this is female and this is male, then everyone is having 23 pairs. This is having 23 pairs, that is 2n. This is also having 23 pairs, that is 2n. ये n एक बार फिर समझ लीजिए. n is haploid set and 2n is diploid set. सेट कैसे समझते हो बच्चों आसानी से? You are class 11th or class 12th student. So you will be appearing for your internal exam or board exam. You will appear for physics, chemistry, biology, English and one optional subject. पांचों सब्जेक्ट की एक एक बुक आपके पास होगी. Then that is one set. Suppose you have taken one book for each subject of NCERT. So that is your one set. यानी जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आपकी एग्जाम क्लियर करने के लिए, उतनी इंफॉर्मेशन के लिए जितने बुक जरूरी है, दैट इज योर वन सेट. सिमिलरली हमारे बॉडी के लिए जितने जीन्स जरूरी है, all the information required for our metabolism, our passing the characters to the offsprings, that are located in 23 chromosomes. So 23 is our one set. तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग हो ही सकता है. हर ऑर्गेनिज्म को जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है उतने क्रोमोसोम उसका हैप्लॉइड नंबर होगा. सो दिस हैप्लॉइड नंबर एंड डिप्लॉइड नंबर वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म. तो ये हो गए हमारे 23 एक सेट है. 23 पेयर्स कैसे बन गए? फर्टिलाइजेशन से, दूसरे गमीट से फ्यूजन होने से. लेट अस सी दिस आल्सो. तो यहाँ पे ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन what happens? This undergoes meiosis, this also undergoes meiosis. तो ये दोनों ने meiosis किया. क्यों? उनके पास दो सेट है. एक उन्होंने NCERT भी लेके रखी थी और एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश ऑप्शनल की रिफ्रेशर भी लेके रखी थी. तो दो सेट है. तो वो एक सेट तो अगर कोई मांगने आए तो दे सकता है कि चलो तुम ये ले लो, मैं दूसरे से पढ़ सकता हूँ, कर सकता है. तो वो क्या करता है? It forms the gamete. This will form the female gamete. This will form the male gamete, and each one will have n number of chromosomes. That means इसके पास हो गए haploid, इसके पास भी हो गए haploid. दोनों के पास haploid chromosome. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? Do animals have haploid body? ये जो फीमेल मेल है, this is the adult body. इन्होंने बनाए, ये जो है इन्होंने बना दिए गमीट्स. अब ऐसा तो नहीं होता हमारे बॉडी में कि हमारी बॉडी है ऐसे एक सर, दो हाथ, दो पैर वाली, एंड दिस गमीट्स दे थिंक कि चलो हम भी एक हैप्लॉइड बॉडी बना देते हैं. हो सकता है उसमें हाथ, पैर, नाक, कान कुछ नहीं हो, कुछ अलग बना देते हैं, या चलो 10 सर 10 पैर वाला कुछ बना देते हैं. डू दे डू दैट? दे डोंट. ये और ये वेट करते हैं एक दूसरे के साथ मिल जाने का. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड
फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन जब होता है, आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन वन सेल इज फॉर्म्ड, दिस सेल इज जाइगोट, और ये जाइगोट दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड, सो दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। तो ये जाइगोट अब फिर से एक नया बेबी बना देता है विच इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर लाइक द अडल्ट द पेरेंट्स। तो ये जो जाइगोट है, नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में भी सेम रह जाते हैं, दैट इज ऑल्सो मैजिक। एक सेल जाइगोट, it is having 23 pairs of chromosome that will form 2 cell, 4 cell, 8 cell, trillions of cells to form our body. हर किसी को वो यही 46 क्रोमोसोम कैसे देता है? That is the magic which we will see while studying the cell division. लेकिन we have already discussed it in previous videos. आप कोई भी एक लेक्चर मिस मत करो, each and every concept, minutest of details we will go on discussing, और उसमें से भी जो difficult लगता है उसे हम concept building में ले लिया करेंगे. So this divides by mitosis to form the offspring, and this offspring has the same characters like the adult. तो adult जैसा ही बन गया, but these gametes इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो डिवाइड करते हुए एक हैप्लॉइड कोई बॉडी बना दे। अगर वो एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो सकते हैं, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन बोथ गमीट्स डाई, दे डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अनदर बॉडी। माइटोसिस से तो डिवाइड करने का पावर एनिमल सेल्स में नहीं है, हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड नहीं करते। देयर आर एक्सेप्शंस, आई विल गिव यू द एक्सेप्शंस। द एक्सेप्शन टू दिस इज honeybee, ant, wasp, these are exceptions. इनमें हैप्लॉइड बॉडी भी बनती है, बट दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। तो अगर हम जब देख लेते हैं अब आगे बढ़ के ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को, देन वी विल सी व्हाट इज दिस हैप्लॉइड डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। यहाँ हमने क्या क्लियर कर दिया अभी कि all the animals with few exceptions in them, the haploid cells do not have the power of mitosis. वो माइटोसिस वाला डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाते हैं, जिससे डिवाइड करते हुए एक बॉडी बनती है, वो नहीं कर पाते हैं, और then they die if there is no fertilization. Then you can ask, can they do meiosis? ये गमीट्स है, ठीक है, गमीट्स है, दे देमसेल्व्स आर गमीट्स। मियोसिस होता है गमीट फॉर्मेशन के लिए, लेकिन लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। आपके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज हैविंग नॉट 2n, इसके पास एनसीईआरटी और रिफ्रेशर दोनों नहीं है, इट इज ओनली हैविंग वन बुक ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ केमिस्ट्री, वन ऑफ बायो, वन ऑफ इंग्लिश एंड वन ऑफ ऑप्शनल। कोई भी इससे मांगने आए वो नहीं दे सकता है। तो ये डिवाइड मियोसिस से तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो प्लांट सेल भी हैप्लॉइड होने पे मियोसिस नहीं कर सकते हैं, एनिमल्स भी नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना ही नहीं है। आपने अपने दिमाग में क्या डाल दिया, आपका कंसेप्ट क्या है कि इट इज़ हैविंग n मीन्स ओनली वन सेट। सेट को पहले आपने समझ लिया कि ये मेरी 5 बुक्स है सब्जेक्ट की, एक एक ही बुक मेरे पास है, तो फिर मैं मियोसिस में नंबर आधे हो जाते हैं, तो आप 2.5 बुक खुद के पास रख के 2.5 बुक्स और किसी को नहीं दे सकते हो। ये श्योर शॉट खुद का नुकसान आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मियोसिस इन हैप्लॉइड सेल्स इज आउट ऑफ क्वेश्चन, एंड माइटोसिस ऑल्सो डज नॉट ऑकर इन एनिमल सेल्स अदर दैन दीज 3, honeybee, ant and wasp. Fine. Now let us relate this to the haplodiploidic life cycle of bryophytes and pteridophytes. क्या होता है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में? पीछे का कंसेप्ट पहले समझ लो।
बात ये है कि प्लांट सेल्स जो है, दिस प्लांट सेल्स दे हैप्लॉइड सेल्स कैन ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो वो क्या करते हैं, एक यहाँ सोच लो कि हमारे एग और स्पर्म दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी तरह की फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरी तरह की बॉडी बना देते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एक एग्जांपल देख लीजिए ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स, हमारी बॉडी तो डिप्लॉयड है, दिस इज आवर बॉडी विच इज डिप्लॉयड, हमारी बॉडी है डिप्लॉयड, इसकी बॉडी है हैप्लॉयड, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। टेरिडोफाइट्स दे हैव द डिप्लॉयड बॉडी। हम क्या देख रहे हैं, डू द हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड by mitosis? No. In case of animals, with some exceptions, a big no. But in case of plants, देखो क्या होता है। This is the bryophyte, ठीक है। It is called gametophyte. It is called gametophyte. It forms gametes and it is haploid. तो ये जब गमीट बनाता है, मेल एंड फीमेल गमीट, दिस इज फीमेल गमीट एंड दिस इज मेल गमीट, जब बनाता है क्या करेगा। आप यहाँ हमेशा अपने दिमाग में अगर बैठा लेते हो कि ह्यूमन बीइंग में गमीट्स बनते समय मियोसिस होता है, वो नहीं देखना है आपको। आपको देखना है हमारे पास तो 2n थे, डिप्लॉयड सेल्स थे, तो वो मियोसिस करके उसने आधा किया, इसके पास हैप्लॉयड है, स्टिल इसे तो बनाना है गमीट्स, तो ये करेगा, इसको भी उसे सेम नंबर ही देगा, तो आधे करके अपने तो देने वाला नहीं है। सो दिस इज माइटोसिस। तो उसने माइटोसिस से गमीट बना दिए। अब ये जो गमीट्स है, these gametes which are haploid, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों गमीट्स फ्यूज हो जाते हैं और इन्होंने बना दिया जाइगोट। इन्होंने जाइगोट बना दिया 2n। यहाँ आपने देख लिया ब्रायोफाइट्स के एडल्ट में कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, दो इट इज हैप्लॉइड, इट कैन डिवाइड बाय माइटोसिस एंड इट कैन फॉर्म द गमीट्स। तो ये माइटोसिस से इसका सेल डिवाइड कर सकता है, और जो 2n है वो तो डिवाइड कर ही सकते हैं। सो व्हेन दिस जाइगोट, अब इसके पास 2n है, पेरेंट के पास n है, तो कोई प्रोसीजर लगा के मियोसिस करके हैप्लॉइड बन के ये फिर ब्रायोफाइट अपने एडल्ट पेरेंट बॉडी नहीं बनाता है, वो एक गेम खेलना शुरू करता है। ये क्या करता है, इट फॉर्म्स वन डिप्लॉयड बॉडी। It forms one diploid body which is very much different from the adult parent body. एक इसका डायग्राम भी देख लो। ये है फ्यूनेरिया, दिस फ्यूनेरिया एडल्ट प्लांट बॉडी, ये एडल्ट प्लांट बॉडी है फ्यूनेरिया की। इसकी जो ये डिप्लॉयड फॉर्म बनती है कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट कितनी अलग है देखो, इसी से अटैच रहती है, अलग होती तो है नहीं, लेकिन सी इट हैज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कैप्सूल, दिस इज सीटा, दिस इज सीटा, और यहाँ पेरेंट से ये अटैच्ड है बाय फूट, ये अटैच्ड है और उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है। दोज डिटेलिंग वी डू नॉट नीड हियर। सी द इंटरेस्टिंग थिंग इज नाउ इट हैज फॉर्म अ डिफरेंट बॉडी in the life cycle of the same plant, in the life cycle of the same organism। यहाँ से यहाँ हमारे adult मेल एंड फीमेल ने adult दूसरा छोटा बेबी जो बना दिया सेम अपने जैसा, वो यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। इसने जो बॉडी बनाई which is different from the parent body। अब ये स्पोरोफाइट it undergoes, अब जब इसे समझ में आएगा कि चलो बहुत खेल हो गया, अब हम फिर से हैप्लॉइड बन जाते हैं और पेरेंट जैसा हैप्लॉइड बॉडी बना देते हैं। देन इट विल अंडरगो, अब इसे हैप्लॉइड बनना है बच्चों, हैप्लॉइड बनना है तो क्या करेगा, नंबर कम करना है, इसके पास 2n है ही है, 2n है तो इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट फॉर्म्स स्पोर्स। ये जो स्पोर्स इसके बनते हैं दे आर हैप्लॉइड। बस अब क्या है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स, ये फिर क्या करेंगे, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, माइटोसिस और मियोसिस। ये जो हैप्लॉइड सेल्स है प्लांट में, हमने अभी पढ़ा कि हैप्लॉइड सेल्स हैव द पावर
टू डू माइटोसिस। तो ये हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ हमारे एग, हमारे स्पर्म्स को ये पावर नहीं है दैट दे कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। तो अच्छा है ना, यहाँ पे इन्होंने माइटोसिस करते हुए बना दी एक, फिर से यहाँ से इस स्पोर्स विच आर हैप्लॉइड, दे अंडरगो माइटोसिस एंड दे फॉर्म द एडल्ट body. The bryophytes, they are having the one in their life cycle, they are having one diploid body also, one haploid body also. जो बॉडी का ड्यूरेशन उसके लाइफ साइकिल में ज़्यादा होता है उसे हम मेन बॉडी कहते हैं। इसलिए हमने कहा ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। किसे आप बड़ा कहोगे, किसे आप मेन कहोगे? जिसका ड्यूरेशन लाइफ साइकिल में ज़्यादा है। सो इसकी हैप्लॉइड की ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मेन बॉडी। सो ये सब क्यों हो रहा है बच्चों? ये सब इसीलिए हो रहा है कि प्लांट के हैप्लॉइड सेल्स दे आल्सो हैविंग द पावर टू डिवाइड बाय माइटोसिस। तो जब पावर है ही तो थोड़ी देर थोड़ा सा खेल खेल लेता है और एक अलग तरह की बॉडी बना लेता है। फिर जब खेल से उगता जाता है तो फिर वो वापस चला जाता है अपने बॉडी, मेन पेरेंट बॉडी की तरह। अब हम हनी बी का एक एक्सेप्शन लेके देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में या मैक्सिमम सारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में, दे ऑल्सो हैप्लॉइड सेल, दे डू नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस। तो ये हनी बी में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ सी व्हाट हैपन्स इन द लाइफ ऑफ हनी बी। दिस हनी बी, इन द हनी बी, the female honeybee is diploid and the male honeybee it is haploid. यहीं से पूरा डिफरेंस स्टार्ट हो गया। Female honeybee is diploid. This is the main parent body ना, this is the parent body. So the female body is diploid and the male body is haploid. अब समझो दोनों को गमीट्स बनाने हैं। आपका अभी कंसेप्ट क्लियर है? इसे गमीट बनाना है, इसे गमीट बनाना है। माइटोसिस से कौन करेगा? मियोसिस से कौन करेगा? इट इज हैविंग टू सेट्स। मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन जिसमें नंबर हाफ होते हैं। तो ये मियोसिस कर लेता है। ये मियोसिस करते हुए इट फॉर्म्स द फीमेल गमीट, इट फॉर्म्स द फीमेल गमीट विच इज हैप्लॉइड। इसने भी हैप्लॉइड गमीट बनाए, इसने भी हैप्लॉइड गमीट बनाए। दिस मेल गमीट विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड, बट हियर ये क्या करेगा? ये करेगा माइटोसिस। हमारे पूरा आज का कंसेप्ट वही चल रहा है बच्चों कि एनिमल्स हैप्लॉइड बॉडी क्यों नहीं बनाते हैं। प्लांट्स में ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का लाइफ साइकिल क्या शुरू हो जाता है? हमने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। सेम ऑर्गेनिज्म returning to the offsprings which is having the same body as it has, बीच में एक दूसरी बॉडी भी आ जाती है तो दोनों को मिला के हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसे हम नहीं कहेंगे ऐसे, इसे हम कहेंगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड, देखो कैसे, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, दोनों अलग है। इट हैज फॉर्म द गमीट्स विथ मियोसिस, दिस हैज फॉर्म बाय माइटोसिस। बन तो गए गमीट। नाउ व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन, तो व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन, सो द zygote is formed and the zygote it has n plus n, that is 2n। इसके पास 2n क्रोमोसोम्स हो गए। अब क्या हो गया यहाँ पे? ये जाइगोट जब डिवाइड करेगा माइटोसिस से, देन इट विल फॉर्म द फीमेल बी। इससे जो बनेगी वो फीमेल बी। हमारे जैसा नहीं कि जाइगोट है। इन आवर केस द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बाय सेक्स क्रोमोसोम। कौन से जाइगोट में XX है, कौन से जाइगोट में XY है, ये डिसाइड करता है कि दैट विल बी द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल और फीमेल। यहाँ डिसाइड करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, द जाइगोट फॉर्मेशन इज देयर एंड द डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड।
then it will undergo mitosis and it will form the female body. इस फीमेल बॉडी के हर सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे. ठीक. और दूसरा कंडीशन देखिए, दिस इज द फीमेल गमीट, दिस वाज फर्टिलाइजेशन, दिस वाज केस 1. नाउ लेट अस सी केस 2. This female gamete, it is not fertilized. It is not fertilized. तो जो ये fertilize नहीं हुआ, जब fertilize नहीं हुआ तो ये N ही रह गया. This is the N, the unfertilized egg. Now it divides by mitosis. इसने हमारे सारे रूल खराब कर दिए ना कि हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस से डिवाइड नहीं करते, मियोसिस से तो कोई नहीं करता, लेकिन ये माइटोसिस से बाकी एनिमल्स में नहीं करते हैं विदाउट एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस. उसमें से एक एक्सेप्शन है ये हनी बी. इसमें जो ये अब मेल बॉडी बनाएगा, दिस इज बाय माइटोसिस. सो दिस इज बाय माइटोसिस. सो द मेल बी इज फॉर्म्ड हियर. मेल बी ये है हैप्लॉइड. सो दिस मेल बी, यहाँ देखो मेल, तो दिस इज कॉल्ड हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म. कि fertilized one, the diploid one will be female and the haploid one, the unfertilized eggs, they will become the male. एक चीज नोटिस की आपने कि ये जो मेल है, किसी भी मेल का कोई फादर नहीं है. दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग्स. दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स. सो they do not have any, no male bee has any father. See, and all the female bees, they have father as well as mother. तो हमने क्या सीखा? हमने ये नहीं, एक्चुअली हम सीख रहे थे कि डू एनिमल्स, यहाँ जो हेडिंग है, डू एनिमल्स हैव हैप्लॉइड बॉडी. व्हाट आई वांटेड टू टीच यू वाज दैट कि ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में क्यों ऐसे दो तरह की बॉडी बन जाती है और जो हमारे ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम एनिमल्स में नहीं होती. बिकॉज इन एनिमल सेल्स विदाउट फॉर सम एक्सेप्शंस, फॉर ऑल एनिमल सेल्स haploid cells cannot divide by mitosis neither by meiosis. और प्लांट सेल में ये माइटोसिस कर सकते हैं, माइटोसिस कर सकते हैं. तो वो दो तरह की बॉडी, जो डिप्लॉइड जाइगोट है वो भी फ्री है एक बॉडी बनाने के लिए, अगर ये हैप्लॉइड है वो भी फ्री है एक डिफरेंट बॉडी बनाने में. आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग. These are actually bonus videos. The study which is going on in that week, lectures में जो जो topics आते हैं उसमें अगर कोई हार्ड कंसेप्ट हो, लेक्चर में तो समझा दिया, उसके अलावा भी हम संडे के दिन में उसे लेके फिर से उसे दूसरे अप्रोच से लेके उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं. सो व्हेनेवर सच concept difficult point I will observe, then you will go on getting a special Sunday concept building session on the Sundays, so that आप अभी 11th के हो, ये 11th का आपला हैप्लोडिप्लॉन्टिक वो दो प्लांट्स किंगडम चल रहा है अभी, आप अपनी 11th को मजबूत कीजिए, 12th को मजबूत कीजिए एंड बी अ विनर. बोर्ड में भी अच्छा कीजिए, नीट में भी अच्छा कीजिए. सी यू Monday 2 PM with the topic Bryophytes.